پاکستان میں 19 سال بعد بڑی نشکاری پی آئی اے 135 ارب میں فروخت عارف حبیب کنسورشیم نے قومی ایئر لائن کے 75% حصے خرید لیے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ بولی لگائی۔ لکی کنسورشیم نے 134 ارب کی بولی لگائی۔ عارف حبیب کا پہلے مرحلے میں طیاروں کی تعداد 38، دوسرے مرحلے میں 64 کرنے کا اعلان۔ بولے ایئر لائن کے ملازم اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان میں 19 برس بعد پہلی بڑی نشکاری، پاکستان کی قومی ایئر لائن بک گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کا نیا مالک بن گیا۔ پاکستان میں 19 برس بعد پہلی بڑی نشکاری مکمل ہوئی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید لیے۔ دوسرے نمبر پر لکی کنسورشیم نے 134 ارب روپے کی بولی دی تھی۔ عارف حبیب گروپ چیئرمین عارف حبیب نے بحالی کا پلان بتا دیا۔ پی آئی اے کے بیڑے کی توسیع کا بھی اندیا دے دیا۔ بولے پی آئی اے نے اچھے دن دیکھے ہیں، اس سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ معاشی ماہر محمد سہیل کا کہنا ہے کہ برسوں سے سرکاری اداروں کے نقصانات قومی خزانے پہ بوجھ بنے رہے۔ حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ بولی کی قیمت توقعات سے زیادہ رہی۔ انہوں نے نشکاری کو سرمایہ کاریوں کے اعتماد کا اظہار قرار دے دیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پی آئی اے کی کامیاب نچکاری، وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم اور وزیر نچکاری کو مبارکباد دی۔ کہا آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کے ہر شہری کو مبارک ہو۔ نچکاری کا عمل نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے مکمل ہوا۔ پر امید ہے کہ ہم دوبارہ سے پی آئی اے میں سفر کریں گے۔ ہر شہری کو مبارک ہو۔ آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ آئی تھنک ایک نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے۔ میں محمد علی صاحب کو اور پوری ٹیم کو، پرائم منسٹر کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسپیشلی جنہوں نے یہ پی آئی اے جیتی ہے ان کے لیے، اور بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ وی آر آل لوکنگ فارورڈ کہ دوبارہ سے پی آئی اے میں ٹریول کرنا شروع کریں۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ پاکستانی بزنس کمیونٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کر کے اعتماد کا عملی ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ادارے طویل عرصے سے اربوں روپے کے خسارے کا شکار تھے، تاہم پی آئی اے کی نچکاری سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ گوہر اعجاز کے مطابق اس فیصلے سے سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی، معیشت کو مثبت سمت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ریکارڈ بولی مارکیٹ کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پی آئی اے کافی عرصے سے مشکلات کا شکار تھی، لیکن نچکاری کے بعد ادارے کے مستقبل کے حوالے سے امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ ہمارا نیشنل کیریئر جو کہ پچھلے کئی سالوں سے تکلیف میں تھا، اس کی آج بڈنگ ہوئی۔ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے دونوں گروپس نے بڑے زور و شور سے اور بڑی ہمت سے دونوں نے اس کو بڈ کیا۔ عارف حبیب کنسورشیم نے اس کو ریکارڈ پرائز پہ 135 ملین 13,500 کروڑ روپے کے اوپر اس کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ سنہرا دن ہے، جس میں پاکستانی بزنس مین، پاکستان کارپوریٹس، پاکستانی جو ہے انویسٹرز پاکستان کے اندر جو ہے آج یہ سب سے بڑا قدم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں اور اپنے ملک کی چیزوں کو اس طرح سنواریں جس کا سب کا حق ہے۔ میں عارف حبیب صاحب کو اور پورے گروپ کو، پورے پاکستان کو اور پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی آئی اے سے متعلق پیش رفت پر سرمایہ کاروں کی نظریں، مقامی اسٹاک مارکیٹ میں رول اوور بیک کے باعث کاروبار محدود دائرے میں رہا۔ 100 انڈیکس 663 پوائنٹس کی بلند ترین اور 235 پوائنٹس کی کم ترین سطح کے درمیان رہا۔ انڈیکس اختتام پر 130 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,71,073 پر بند ہوا۔ سونے کی اونچی اڑان رہی، ایک تولہ سونا 8500 روپے مہنگا ہو گیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان، سونے کی پھر اونچی چھلانگ، ایک تولہ سونا 4,70,000 روپے سے اوپر۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے باعث شیئرز کی خرید و فروخت کی سرگرمیاں محدود رہیں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان جاری رہا۔ آغاز میں کاروباری سرگرمیاں تیز، لیکن اختتام منفی زون میں ہوا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے متعلق پیش رفت پر مارکیٹ کی توجہ مرکوز رہی۔ سونے کی قیمتیں ریکارڈ توڑ دیے۔ عالمی بازار میں سونا $85 مہنگا ہو کر $4,485 فی اونس پر پہنچ گیا۔ ایک تولہ سونا
8,500 रुपए मजीद महंगा, 4,70,862 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपए इजाफे से 4,03,688 रुपए पर जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 7,205 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान बैंकिंग, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के हिस्से में खरीदो फरोख्त देखी गई। जहां इन्होंने फोकस किया हुआ है वो सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं। ये जर्नी उठा के देखिए कि इसके अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन थी वो सीमेंट सेक्टर की रही है, कमर्शियल बैंक्स की रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में रही है और फर्टिलाइज़र में रही है। अच्छा, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न जो है ना कंपनीज़ ने दिए, अच्छे डिस्काउंट रेट पे ट्रेड हो रहे थे। वहाँ से एक मार्केट में जो है ना वो बाइंग आना शुरू हुई और एक अच्छे लेवल को एक अच्छा इन्वेस्टर बहुत जल्दी पिक कर लेता है। और यही वजह है कि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई जो है ना वो सब ब्रेक करती हुई चली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम नेट इंडेक्स में 130 पॉइंट की कमी से 1,71,073 की सतह पर हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 562 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, 287 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 151 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। मार्केट में मजमूई हजम 648 मिलियन शेयर्स रहा, जबकि टर्नओवर 28.23 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन नवीद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कुवैत की इंटरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ 3 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला ने मुआहदों को खुशाइंद करार दिया। अपने खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अहम पेशरफ्त हो रही है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली का मिशन, सिंध हुकूमत और कुवैती कंपनी के दरमियान मुआहदा तय। वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, सिफारतकारों और सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में 3 अहम मंसूबों पर दस्तखत किए गए। सिंध हुकूमत और कुवैत की एनरटेक होल्डिंग कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत स्ट्रेटेजिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती पायदारी के शोबे ने मायरात कायम कर दिए हैं। नबी सर वाटर सप्लाई मंसूबे की कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख की तकमील, NID साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और TP4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए मफाहमती याददाश्त के मुसवदे पर दस्तखत हो गए। ये मंसूबा 740 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी से मुकम्मल होंगे। The total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership project that we've done to date. And we got Enitech Holdings to come in collaboration with us, the first G2G project under public-private partnership. वज़ीर आला ने नबी सर वाटर सप्लाई मंसूबे को एक तारीखी कामयाबी करार दिया और कहा कि सिंध की तारीख में सबसे बड़ा पेचीदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है। यह मंसूबा थर में कोयले के पावर प्लांट्स को भी पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगा। नबी सर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। PPP का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक हुआ है। वज़ीर सिंध ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और एनर्टेक के इश्तराक से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट TP4 का मंसूबा 400 मिलियन रुपए से मुकम्मल होगा। आजिज़ जमाली, सिटी 21। ई चालान से मुतालिक सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लिमानी जमातों के अरकान ने शिरकत की। ई चालान पर शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का जायज़ा लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन ने मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों के जुर्मानों की रकम कम किए जाने पर इत्तेफाक हो गया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। लेस चालान पर अवामी नुमाइंदों ने सर जोड़ लिए। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी वालों पर ई चालान में नरमी की तजवीज़। सिंध असम्बली की कमेटी रूम में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और PTI अरकान ने शिरकत की। महकमा दाखिला सिंध के अलावा आला पुलिस अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। मुशावरत के बाद तमाम सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। 1 हफ्ते का हमने टाइम रखा है कि इस पर ये प्रॉपर, जैसे मेन जो यहाँ पर कराची में इशू हो रहा है ट्रैफिक का, वो मोटरसाइकिल के हवाले से, और दूसरा छोटी गाड़ियाँ जो हैं कम
सेलराइट पर्सन जो हैं या मजदूर तबका है वो उनको यूज़ कर रहा होता है, और उनके लिए हम सब दोस्तों का ये ख्याल है कि इसको हम रीएड्रेस करेंगे मोटरसाइकिल और कार की जो चालान की फ़ीस है। इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमर्शियल गाड़ियों के मुकाबले में मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ी वाले ई चालान से ज़्यादा परेशान हैं, कानून में तरमीम की जाए। हुकूमत से ये गुजारिश की थी असेंबली के फ्लोर पर कि जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं चालान की मद में उसको रैशनलाइज किया जाए, क्योंकि जो एक आम शहरी है जो मोटर बाइक चलाता है या जो कार भी चलाता है वो 1000 सीसी से कम का एक लोअर मिडिल क्लास का जो शख्स है उस पे जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं ये बहुत ज़्यादा है। इजलास में शरीक अरकान असेंबली का कहना था कि ये तय हुआ है कि सिग्नल तोड़ने वाले का जुर्माना कम नहीं होगा। बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है, आज कमेटी बनी है, उसमें अपोजिशन भी थी और गवर्नमेंट भी थी और हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे और दीगर अफसरान भी थे। इसमें जो पॉजिटिव उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो एक तो ये थी कि जो हादसात होते थे पहले उन हादसात में काफ़ी हद तक कमी आई है। गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में ये कहा है कि 1 हफ्ते में आप लोग इस पर होमवर्क करें। अब ये नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिल सवार जैसे कि सिग्नल बंद होते हैं और वो तेज़ी से गाड़ियाँ निकालते हैं तो उस पर चालान माफ़ कर दिया जाएगा जो अमाउंट इस वक्त है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि आइंदा हफ्ते तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी और तरमीम का ड्राफ्ट सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज अपने क़याम से ही अवामुन्नास को फौरी तिबी इमदाद की फराहमी में मसरूफ़ अमल है। इदारे के CEO ब्रिगेडियर तारिक कादिर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां उनका कहना था कि एयर एम्बुलेंस मुतारिफ कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हमा वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हंगामी तिब्बी इमदाद के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कोई तिब्बी आलात के साथ सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज अवामुन्नास की खिदमत में पेश है। इदारे के CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर का कहना था कि सिंध भर में हमारे पास 627 जदीद एम्बुलेंसेज, मोटरसाइकिलें और अमला फौरी तिब्बी इमदाद फराम करने के लिए तैयार रहता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर ने काटी के दौरे पर बताया कि एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए कोशिश है। 40 एम्बुलेंस से 600 एम्बुलेंस पे पहुंचने में हमें 4 साल लगे हैं। थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, थैंक यू टू पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज तक के समय इनकार नहीं किया। जहाज़ की बातचीत हमारे तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर हो सकता है कि हमारे फिक्स विंग या जो रनवे वाला जहाज़ जो है हेलीकॉप्टर के बगैर, वो वाला जहाज़ जो है पहला जहाज़ वो आ जाए हमारे पास। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर इकराम राजपूत ने सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज और रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 के किरदार को सराहा और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो लंदन और अमेरिका में ऐसी गाड़ियाँ देखी थी, पाकिस्तान में देखी नहीं। आज इन्होंने विजिट कराई 1122 की एम्बुलेंस का, तो वेल इक्विप्ड और हर इमरजेंसी की चीज़ उसके अंदर मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अच्छा काम कर रही है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये भी एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए हम ब्रिगेडियर साहब के साथ हमेशा काटी खड़ी है और आगे भी हम इस पे प्रोजेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक रेस्क्यू इदारे 1122 रोजाना 26,000 से ज्यादा एमरजेंसी कॉल्स मौसूल होती हैं, जबकि इस वक्त इदारे में 2200 से ज्यादा तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। आवाम को बरवक्त और मयारी तिब्बी सहूलत की फरहमी के लिए सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मार्टिन क्वार्टर रोड जिला कोरंगी, शर्की और वस्ती को मिलाने वाला है। 19 बरस हो चुके हैं, मार्टिन क्वार्टर रोड तामीर नहीं हो सका। मानसून बारिशों के बाद ये दो रोया शाहरा अपना वजूद खो बैठी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मार्टिन क्वार्टर रोड इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाली का शिकार। 1.5 से 2 किलोमीटर 2 रवैया रोड हजम के लिहाज से कम सही मगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से अहम तरीन तस्वुर किया जाता है, जिसकी तामीर साल 2006 में की गई थी। इस रोड पर फराहमी और नकासियाब के निज़ाम की खराबी पहले ही इसके दोनों ट्रैक मुतासिर कर चुकी थी। रही सही कसर मानसून बारिशों ने पूरी कर। कोरंगी तक तीनट्टी फ्लाईओवर गड़े ही गड़े हैं, जिनसे गाड़ियां हिचकोले खाती गुजरती हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय हो जाता है। बुरा हाल हो रहा है, शाम को ट्रैफिक बहुत होती है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं,
हमारी दुकान के सामने भी बहुत जंपिंग वगैरह हो गई है। 5 से 6 महीने हो गए, बहुत खराब है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेडीज जा रही है, कीचड़ और पानी गटर का बहुत है, लिहाजा हमारी ये है कि अपील के रोड को बनाया जाए। मार्टन रोड से दफ्तरी औकात कार में सफर मुहाल बन जाता है। स्ट्रीट लाइट की अदम मौजूदगी और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर मजबूर शहरियों के बाइस शाम से रात गए बम्पर टू बम्पर गाड़ियां फंसी रहती हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों का गिरना और रक्षों का उलट जाना मामूल है। यहाँ पे रात दिन ट्रैफिक जाम ही रहता है, गाड़ी ऐसी खूब एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। यहाँ पे आए दिन ना लाइट है ना कुछ है, बस पानी आता है तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई भी काम नहीं हो। ये तब से ऐसी पड़ी हुई है, बस एक ही दफा बनी हुई तो 2006 में, बस उसके बाद तो खराब ही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मार्टन रोड को फौरी अज़-सर-ए-नौ तामीर करके ट्रैफिक जैम, हादसात और गर्दो गुबार की अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इंतहा पसंदी का खात्मा ज़रूरी करार। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क के दिफा और दफाई इदारों के लिए हर मुहाज पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जावेद नबी खोसो ने कहा कि भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालफी अलगार को रोकना होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुत्तहद होने का अज़म। मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से मुल्क की सालमियत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों का जाल। शहर कायद की इंतजामिया भी तैयार। साजिशों के खात्मे और हकायक पर मबनी मालूमात की फरहमी के लिए इजलास में कई इकदाम पर गौर। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की ज़ेर सदारत इजलास में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इजलास में शुरका ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अपनी सिफारिशात पेश की। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा कि तुलबा और नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा हैं। इन्हें मनफी प्रोपेगेंडे से महफूज रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों की सतह पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क और इसकी हिफाजत पर मामूर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना वक्त की अहम जरूरत है। आपने देखा होगा कि यकदम से एक्सट्रीमिज्म की तरफ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, स्पेशली सोशल मीडिया का यूजेज होना शुरू हो गया, और हमारी जो पाक फौज उसके खिलाफ काफ़ी नेगेटिव नैरेटिव्स भी आना शुरू हो गए। उसको काउंटर करने के लिए एक पॉलिसी है पैगाम पाकिस्तान, जिसके तहत हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इस तरह के एक्सट्रीमिज्म, न सिर्फ इस तरह की बल्कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म हो या सियासी एक्सट्रीमिज्म हो, कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो, उसको काउंटर करना है बिल्कुल निचली सतह पे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 साउथ समरीना असलम राजपूत ने कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे और अवामी राय साजी के लिए मीडिया को अपना मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमिज्म या इंतहा पसंदी जो है उसकी शरह जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। उसकी रोकथाम के लिए हमारी नेशनल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, लोकल लेवल है, उस पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मीडिया एक बहुत अहम किरदार अदा करती है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता होता कि ये सही है गलत है, और वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है। इजलास में इस बात पर गौर दिया गया कि शहरी किसी भी खबर पर मुस्तनद ज़राए से तस्दीक किए बगैर ना यकीन करें और ना ही उसे आगे फैलाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। 64 साल शहरी और उनके बेटे का शनाख्ती कार्ड ना बनाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट में शहरी शहाबुद्दीन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नादरा को नोटिस जारी कर दिए, 4 हफ्तों में जवाब तलब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती में खातून पर तशद्दुद केस की समाअत। दौरान समाअत खातून का शौहर और उसके 2 भाई बरी। घरेलू तशद्दुद पर खुदकुशी के लिए पाकिस्तान में वाज़ेह कानून नहीं। अदालत की रिमार्क्स। रिटायर्ड डायरेक्टर की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। टाउन इंसामिया को ग्रेड 16 के ऑफिसर की बरतरफियों का इख्तियार नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार। भारतीय फिल्म धुरंधर में पीपल्स पार्टी की रैली, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने का मामला। फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त की समाअत। सेशन अदालत जुनूबी में SHO दरख्शा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार से उसके नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। रिपोर्ट। दरख्वास्त गुजार अपने इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए पुलिस के पास नहीं आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जुनूबी में को तिब्बी गफलत नाकिस सर्विस पर 10 लाख रुपए पर हर्जाने का हुक्म। निजी अस्पताल के खिलाफ
सैफ उर रहमान ने दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क भर में स्पेशल पर्सन्स की तादाद 7.4 मिलियन है, जिसमें कराची के 2.55 मिलियन स्पेशल पर्सन्स भी शामिल हैं। इन खुसूसी अफराद को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार सरगर्म अमल है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कायद में खुसूसी अफराद को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन, कमिश्नर कराची की हिदायत पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। जिंदा कौमें माशरे के हर फर्द को मसावी हुकूक फराहम करती हैं। इसी फलसफे पर अमल पैरा होते हुए कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार ने शहर की सड़कों पर स्पेशल पर्सन्स के लिए व्हील चेयर लेन बनाने के अज़म का आगाज कर दिया। उन्होंने वाजे किया कि इस दायरेकार को शहर भर में फैलाया जाएगा। पर मेरे ख्याल से वो इनको कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने वही प्रैक्टिकलिटी ये ट्रैफिक आवाज से मैं ले आया, इनको ऑन बोर्ड लिया था, हमने सर्वे की कि अब इनको हम इजी एक्सेस दें थ्रू आउट रोड्स में के लिए इजी एक्सेस होए कि क्रॉस ओवर कर सकें जैसे कोई भी नॉर्मल सिटीजन करता है। कमिश्नर हाउस के असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल रहमान बोले, स्पेशल पर्सन्स के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। इंशाल्लाह इसको हम शाइन कॉम्प्लेक्स या दूसरे जो चौक हैं उनको भी हम यही करेंगे, रैंप भी बनाएंगे। अभी तो ये कलर किया है, इसके ऊपर जो ब्लू और वही ये क्या होता है व्हील चेयर की निशान भी उसमें लगे हैं वाइट कलर में, तो उसके हिसाब से इसमें अभी रैंप भी बनेगा दोनों तरफ से। शहर में किसी न किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार स्पेशल पर्सन्स के लिए शहरी इंतजामिया के इकदामात दुरुस्त सही, लेकिन इन इकदामात को दुरुस्त नताइज के लिए ठोस इकदामात का उठाया जाना जरूरी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।